In this video lecture, we shall be discussing about the access3 code. First of all, the main feature is that it is a binary code. इसका मतलब ये हुआ कि हर जो digit है, that digit can have only two values. Either it could be 0 or it could be 1. So only two values are permitted. So that is what it is called as a binary code. Second thing is that it is non-weighted code. Non-weighted code means there is no value associated with the position of the digit. Like if I take any number, say for example, if I take 496, so there is a value associated with the position of each digit. So we know that this is the unit place, this is the 10th place, and this is the 100th place. So I could write it as 400, then 10 means 9 into 10, 90, unit place 6, 496. So this is a weighted code because corresponding to each position of the digit there is some value associated with it. But in case of a binary code that we are discussing, access3 code, it is a non-weighted code. As the name implies, name से भी हमें पता चल रहा है कि access3 का मतलब है कि whatever the value is given, if we increase the value by 3, just by 3, then we get the access3 code. So now comes that how to get the access3 code from the given decimal number. Now we will discuss about how to get access3 code from the given decimal number. Means हमारे पास कोई decimal number दे रखा हुआ है और अगर हमें वो decimal number access3 code में अगर convert करना है तो कैसे convert करेंगे. इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. फर्स्ट स्टेप है ऐड 3, क्योंकि access3 का मतलब 3 ज्यादा. access3 का मतलब यही हुआ कि इंक्रीज द वैल्यू बाय 3. सो ऐड 3 टू ईच डिजिट ऑफ द डेसिमल. ओके, the decimal which is the given number. B had now replace the each digit that we get from step A. We can write it as from step A by a 4-bit binary number. By a 4-bit binary number. So this we will do. Say for example, if I have a number given number is in decimal. Say for example the number is 35 and we are to convert this into access3 code. What we will do? First of all, add 3 to each digit of the decimal number. So this is 3, this is 5. I am adding 3 to each digit. So it comes out to be 8. And this comes out to be 6. So this is A step is done. Now B step says that replace the each digit from the step A by its 4-bit binary number, binary equivalent. So that is actually is in the form of a BCD. 1, 2, 4, 8 in its BCD form. So 8 I can write it as 1 0 0 0. So this is 1 0 0 0. This is 8. 6 I can write it as 0 1 1 0. So 0
1 1 0. So now the result of this question is 0 1 1 0 1 0 0 0. So this is the access 3 code corresponding the given number. Now we will do the converse of it, that how we get equivalent decimal number corresponding to the given access 3 code. Now the next part is how we can get the equivalent decimal number corresponding to given access 3 code. Means we are given the access 3 code and I want to convert that access 3 code back into the decimal number. So again some steps are to be performed. First step is split the given number. Obviously that given number will be in access 3. So split the access 3 number into 4 bit ग्रुप्स. मतलब जो भी नंबर गया है उसको आप क्या करो 4 बिट्स के ग्रुप्स में डिवाइड कर दो. अब क्योंकि ये गिवन नंबर एक्सेस 3 में है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू बाय 3. तो वापिस ले आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट वी सब्ट्रैक्ट 3 मीन्स 0 0 1 1 in binary. So subtract 3 from each group. Okay. Now see, now obviously this we get after subtraction. So it is equivalent to 8421 code BCD. तो ये तो इसके बराबर होगा एंड इट कैन बी easily converted into equivalent decimal number. Very simple. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो गिवन एक्सेस 3 है, कोड दिया हुआ है हमें, मान लो 1 0 0 0 1 1 0. दिस इज गिवन एक्चुअली, और वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल नंबर. तो क्या स्टेप, स्प्लिट द गिवन नंबर एक्सेस 3 इंटू 4. यहां से शुरू करना है हमने. तो 0 1 1 0. दिस इज द फर्स्ट ग्रुप. इतना सेकंड ग्रुप क्या बना, 0 0 1. कंप्लीट हो गया ये. यहाँ पे था नहीं कुछ भी, तो यहाँ अपनी तरफ से हम 0 लगा सकते हैं. तो सेकंड स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट 3. तो 3 का मतलब 0 0 1 1 0 0 1 1. यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 0 1. तो ये वैल्यू आ गई 1. यहां पे आ गया 1. 0 माइनस 0 0. तो ये 1 आ गया. सेकंड देखते हैं अब हम. तो यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, 1. 1 माइनस 1 0. दिस इज 0 एंड दिस इज 0. सो दिस इज द रिजल्ट. एक्चुअली में अब इसको चेक कर सकते हैं. इट इज इक्वलेंट टू 1 to 4 BCD कोड एंड कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर. कैसे, ये स्टेप 3 जो है वो हम चेकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं. चेक हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल में हमारे पास ये वाली वैल्यू थी 0 1 1 0, जो हमने ये ग्रुप बनाया था 0 1 1 0, और सेकंड ग्रुप क्या था 0 0 1 0. तो अगर मैं इसका निकालूं तो ये मेरे पास लग रहा है 6, और ये हमारे पास क्या लग रहा है 4.
तो दिस इज एक्चुअली 4 and 6, बट दिस इज इन एक्सेस 3। तो ऑब्वियसली अगर ये एक्सेस 3 है तो इसका अगर डेसिमल होता निकालने को हमें, तो इसमें से हम 3 माइनस कर देते, -3 and -3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती 3 और ये वैल्यू क्या आ जाती 1। तो रिजल्ट देखो क्या ये 3 है, ये देखो दिस इज 3 और क्या ये 1 है 1। सो ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी गेट द डेसिमल नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन एक्सेस 3 कोड। अब हम करते हैं कि अगर नंबर बाइनरी में दे रखा हो तो एक्सेस 3 में कैसे कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल है वैसे तो। अगर हमारे पास कोई भी नंबर बाइनरी में दे रखा हुआ है और उसको एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करो आप, सबसे पहले जो भी बाइनरी नंबर दे रखा हुआ है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमने कन्वर्जन्स की हुई हैं और हमें मालूम है कि कोई भी नंबर अगर बाइनरी में दे रखा हुआ तो कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास डेसिमल में नंबर कन्वर्ट होके आ गया तो हम क्या करेंगे, हर डिजिट में हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो फिर भी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं कि मान लो मेरे पास कोई बाइनरी नंबर दे रखा है 110101, ये हमारे पास बाइनरी में है और वी आर टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सेस 3 कोड। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वी विल गेट द डेसिमल नंबर ऑफ इट। तो डेसिमल नंबर निकालने के मैंने आपको कहा हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स तो यही है कि पहले ये लिख लो 110101 और कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वेट लिख दो। तो ये कितना है 1 2 4 8 16 एंड दिस इज 32। और जो 1 है उनकी वैल्यू को ऐड कर दो, मतलब ये और ये। तो कितना आया 32 + 16 + 7, और 5, सॉरी दिस इज 5। सो number we get as 53. So this is 53 in decimal. So this is the one way. Second way हम क्या यूज कर सकते हैं, we could make use of double and add। ये भी आपको मालूम है डबल एंड ऐड का क्या मतलब होता है कि नंबर को लिख लो 110101, इसको लिखो 1, इसका डबल किया 2 में 1 ऐड किया कितना हो गया 3 का डबल किया 6 में 0 ऐड किया 6, ये हो गया 12 में इसका डबल 12 हो गया, इसमें 1 ऐड किया 13 का डबल क्या हो गया 26 में 0 ऐड किया तो 26 ही रहा, इसका डबल 26 का 52 में 1 ऐड किया 53। सो दिस इज 53। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन गेट the decimal number. Now once the decimal number we know, now we can easily convert it into access 3 code। तो फिर हम क्या करेंगे 5 3, इसमें भी हम 3 ऐड करेंगे और इसमें भी हम 3 ऐड करेंगे। हर डिजिट पे ऐड करना है, ये नहीं करना कि आपने टोटल नंबर में एक ही बार आपने ऐड कर दिया, मतलब ऐसा नहीं करना कि 53 में आपने 3 ऐड करके 56 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है हर डिजिट में 3 ऐड करना है। तो हर डिजिट में 3 ऐड किया तो ये हो गया 6 और ये हो गया 8, और इसको अब कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2 4 8 में कन्वर्ट करो। तो 6 का मतलब क्या हो गया 0 1 1 0 और 8 का मतलब क्या हो गया 1 0 0 0। सो दिस इज द नंबर वी गेट इन एक्सेस 3। ओके, नेक्स्ट है कि बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है ये एक्सेस 3 कोड का कि एक्सेस 3 कोड इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एक्सेस 3 कोड
is equal to the access3 code for the 9th complement of that corresponding decimal number. इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर दैट डेसिमल नंबर वी आर गिवन 6 मीन्स 0 1 1 0. नाउ द एक्सेस 3 कोड क्या बनेगा, इसका 6 है तो 6 मीन्स 9, तो 9 कैसे बनेगा 1 0 0 1. और इसका देखो ना लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एक्सेस 3 कोड. तो मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं. वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 0 का 1 कर दो 1 का 0 कर दो, तो ये क्या बन गया 0 1 1 0. सो ये हो गया. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड हमारा. यहाँ पे देखते हैं क्या ये जो हमने लिखा इसके इक्विवेलेंट होता है. ये होता है एक्सेस 3 कोड फॉर द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट गिवन नंबर. तो हमारे पास गिवन नंबर कितना है 6. तो हम क्या करते हैं, इसका हम 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं. तो 9th कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कि हर डिजिट को क्या करो 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो. तो यहां पे नंबर हमारे पास डेसिमल नंबर 6 है, तो 9th कॉम्प्लीमेंट का 9 माइनस 6 क्या हो गया 3. ओके, सो ये जो हमारे पास 3 आया, दिस इज इक्वल टू द एक्सेस 3 कोड. इसका मतलब मुझे इसका एक्सेस 3 निकालना पड़ेगा. एक्सेस 3 कोड इसका मुझे निकालना पड़ेगा जो हमारे पास नंबर आया है. तो ये 3 है, 3 में से 3 ऐड कर दिए क्योंकि एक्सेस 3 कोड निकालना तो 6 हुआ. तो 6 का मतलब क्या हुआ 0 1 1 0. सो ये इसके बराबर हो गया. सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड. कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3 कोड है वो बराबर है किसके 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर. सो एक और एग्जांपल करते हैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए दोबारा. मान लो कि हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है 5. 5 मीन्स 0 1 0 1 बीसीडी कोड में. इसका हम निकालते हैं एक्सेस 3 कोड. ठीक है, तो इसका एक्सेस 3 कोड क्या 5 में 3 ऐड किए 8 मीन्स 1 0 0 1. अब हम निकालते हैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट. तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 0 1 1 0. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई. अब हम करते हैं राइट हैंड साइड पे. दिस इज इक्वलेंट टू द एक्सेस 3 कोड फॉर द 9th कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब जो भी हमारे पास गिवन नंबर है उसका पहले हम 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं. नंबर क्या है डेसिमल नंबर 5, तो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 4 आएगा कि 9 में से हम 5 कम करेंगे तो 4 आ गया. 4 आया हमारे पास. तो 4 को हम कैसे ले सकते हैं 0 1 0 0. ये 4 हो गया क्योंकि 1 2 4 8, सो 0 1 0 0. ओके, तो क्या इसका हम एक्सेस 3 कोड निकालें. अब एक्सेस 3 कोड 4 का 3 ऐड किए 7 को हम क्या लिख सकते हैं 0 1 1 1. सो दिस इज इक्वल टू दिस. सो दिस इज द रीजन दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.